rahmatullahi wa barakatuh. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما وفهما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. تمام تعریف تحمد و ثنا رب ذوالجلال کنت بیسن بے شمار درود و سلام بر ذات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تہندس آلس تامت. پتمہ درسس مز پڑھو اسی اللہ تبارک و تعالیٰ ہن کرے متکبر انسانن ہز خرابی اور تہذ یس زن ابدی انجام تمیک تہ ذکر بخلچ یس زن قباحت سہ آئی بیان کرنے اور ریا یس زن امچ خباست آئی بیان کرنے. اور ام پتہ کرو اللہ تبارک و تعالیٰ ہن ام کت ہند تہ اعلان کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چھ پنن بندن پہ ذرہ برابر تہ ظلم کرن بلکہ اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ وہ اپنے فضل و کرم سے بندوں کو اپنے عمل سے بھی زیادہ بڑا چڑھا کر انہیں اس کا بدلہ عطا کرتا ہے. آزچ آئے مبارکہ یم زن بہرحال آئے مبارکہ کر میں تہ برونٹ کن تلاوت. ان میں بھی قیامت کا ہی ذکر ہے یعنی یمن مز تہ آخرت کی یس زن جزا تمیک ذکر آمد کرنے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماون اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فکیف اذا جئنا من کل امت بشہید. اور اس وقت ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کو کھڑا کریں گے. یعنی منکرین کو کہا جاتا ہے یم زن منکرین یم مشرکین مکہ یم زن اس یا تم لوگ یم زن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سندس نبوتس انکار اس کرن. بہرحال ان سے کہا جا رہا ہے کہ اس قیامت کے دن کا ذرا تصور کرو, اس روزی جزا کا ذرا سا نقشہ اپنے سامنے اپنی آنکھوں کے سامنے لاؤ اور تصور کرو فکیف اذا جئنا من کل امت بشہید کہ اس دن ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کو کھڑا کریں گے. بہرحال امچ تفسیرس مز علماء لکھمت اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی تفسیر میں ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ہر امت میں سے ہر نبی کو کھڑا کرے گا. یعنی یم تہ نبی آمد بہرحال ان کو کھڑا کیا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا کہ کیا آپ نے میرا پیغام میرے یہ بندوں تک پہنچایا, کیا تہ واتنوا میون پیغام میانن بندن تامت. بہرحال ہر کوئی عرض کرے گا یا اللہ ہم نے استطاعت بھر اپنا آپ کا یہ پیغام لوگوں تک پہنچا دیا. پھر اس کے بعد لوگوں سے کہا جائے گا کہ کیا ان لوگوں نے آپ تک پیغام پہنچایا, تو بہرحال یہ انکار کریں گے. تمام امت سابقہ امت یم زن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے بغیر سبھی امتیں انکار کریں گی کہ یا اللہ انہوں نے ہم تک آپ کا پیغام نہیں پہنچایا. حالانکہ اللہ جانتے ہیں کہ ان نبیوں نے ان رسولوں نے ہمارا پیغام ان لوگوں تک پہنچایا ہے. تو اسی منظر کو اس آیت میں پیش کیا گیا ہے فکیف اذا جئنا من کل امت بشہید. اس وقت ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کو کھڑا کریں گے, یعنی ہر امت میں سے ہر نبی کو کھڑا کریں گے اور اسے پوچھیں گے اپنی اپنی امت کے بارے میں اور اللہ کی اس دعوت کے بارے میں. وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا. اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو بھی کھڑا کریں گے ان لوگوں کے خلاف گواہ بنا کر. یعنی یم زن مشرکین مکہ تہند انکار کرن ان لوگوں کے خلاف بھی ہم آپ کو گواہ کھڑا کریں گے. بہرحال روایتن میں آمد جب یہ تمام لوگ انکار کریں گے نبیوں کا تو بہرحال آخری گواہی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لی جائے گی اور انہیں کہا جائے گا کہ کیا ان لوگوں نے ان نبیوں نے اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچایا. قالوا بلا,
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वापस जवाब, या अल्लाह, इन्होंने आपका पैगाम तमाम लोगों तक पहुंचाया, क्योंकि इसकी शहादत आपकी किताब कुरान दे रही थी। तिकाज अमिच गवाही अमिच शहादत कत मज लबन अस कुरान पाकस मज तमाम साबिका उम्मतों का जिक्र, तमाम साबिका अंबिया का जिक्र कि उन्होंने कैसी कैसी तकालीफ और कैसी कैसी मुश्किलात बर्दाश्त की इस अल्लाह के पैगाम को लोगों तक पहुंचाने के लिए। ये सह आला मकाम यह जन अल्लाह तबारक व तआला जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अता करे, बल्कि ये सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ही ये जन एक तो उनकी शान अरफा व आला है, उनकी वसातत से उनके सदके तुफैल में ये वसफ और ये जन बरकत ये उनकी उम्मत को भी हासिल होगी। उम्मत के बड़े बड़े सुलहा, उम्मत के लोग उस दिन गवाही देंगे, या अल्लाह, इन तमाम नबियों ने अल्लाह का पैगाम आपके बंदों तक पहुंचाया, क्योंकि हमने इनके गवाही आपकी किताब कुरान में पाई है। गो लुख यानी रसूलुल्लाह उम्मत सुलहा, रसूलुल्लाह उम्मत नेक ईमान वाले बंद वो भी उस दिन क्या देंगे, गवाही देंगे। बहरहाल फकैफ़ इज़ा जिना, तो इन मुशरिकीन मक्का को और इन मुनकरीन को कहा जाता है, अरे उस दिन आपका क्या हाल होगा जिस दिन हम हर उम्मत में से एक एक गवाह को यानी नबी को खड़ा करेंगे, वजीना बिका अला हौलाई शहीदा, और या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको भी हम गवाह बनाकर खड़ा करेंगे। बहरहाल क्या शदीद मंजर होगा उस वक्त, क्या कैफियत आसी तम माशर के मैदान, और अल्लाह का दरबार सजा होगा। अल्लाह तबारक व तआला पूरी अपनी अजमत के साथ, जलाल और किबरियाई के साथ बहरहाल जलवा अफरोज होंगे, और उस वक्त यह हालत होगी। बहरहाल अमकुई इस्तेहजार गो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह अक्सातन रवायत में अहमद बुखारी की रिवायत है, और ये बिल्कुल सही सनद के साथ रिवायत किया गया है कि अक्सातन फरमो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कि ए अब्दुल्ला, आप मुझे कुछ कुरान पढ़कर सुनाओ। अब्दुल्ला क्या कुरान बोझनात। बहरहाल हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह तआला ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपको कैसे कुरान सुनाऊं जबकि ये कुरान आप पर नाजिल हुआ है, ये तही पर नाजिल गोमुच, तो मैं आपको कैसे सुनाऊं। बहरहाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं किसी और के मुंह से, किसी और के दहान से ये कुरान सुनना चाहता हूं। बहरहाल अम पछे हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कुरान पाक की तिलावत शुरू करन, और रिवायत में आता है जब वो इस सूरह निसा की इस आयत पर पहुंच गए, फकैफ़ इज़ा जिना मिन कुल्लि उम्मतिन बिशहीदिन व जिना बिका अला हाउलाई शहीदा, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा बस बस, यानी ए अब्दुल्ला अब बस करो, यानी ओतिताम। दबन हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह फरमाते हैं, जब मैंने अपना सर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर की तरफ देखा, उठाया, तो मैंने देखा कि आपकी दोनों आंखों से आंसू जारी थे, यानी दशवे ओस यानी दशवे चश्मानी मुबारक मुझ क्या नेरन ओश नेरन। बहरहाल ये वही मंजर था जो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों के सामने था। उस वक्त की हैबत, उस वक्त का जलाल, उस कैफियत और उस कैफियत का असर था कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंखों जारी हो गए। बहरहाल ये तो एक आयत है आज के दरस की। दयम आयत यजन यौम इदिन यवद्दुल लज़ीना कफरू, अब उन लोगों का यौम इदिन ये वो दिन होगा, यवद्दुल लज़ीना कफरू कि काफिर तमन्ना करेंगे, यानी कौन लोग, जो आज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनका इनकार करते हैं, जो इस कुरान का इनकार करते हैं, और इससे पहले भी जिन्होंने नबियों का या किताबों का इनकार किया है। यौम इदिन यवद्दुल लज़ीना कफरू, ये वो दिन होगा जिस दिन काफिर लोग, अल्लाह के बागी और मुनकिर लोग तमन्ना करेंगे, व असव्वुर रसूल लौ तुसव्वा बिहिमुल अर्ज़, और वो लोग जिन्होंने रसूल की नाफरमानी की होगी वो ये तमन्ना करेंगे, लौ तुसव्वा बिहिमुल अर्ज़, काश हम जमीन में धस जाते, यानी काश आज धसा आज गसा कत मज जमीनस मज गसा तल पतल, ताकि हमसे आज हिसाब किताब न लिया जाता, ताकि आज गसा अजाब निश क्या बरी। बल्कि इसी तरह की आयत सूरह नबा के आखिर में भी है, व यक़ूलुल काफिरु या लैतनी कुन्तु तुराबा, उस दिन काफिर ये तमन्ना करेंगे और ये हसरत करेंगे, या लैतनी कुन्तु तुराबा, काश इस दिन हम मिट्टी ही हो जाते, काश इस गसा आज क्या मिर्ची गैसे आज, ताकि इस बचाव के निश अजाब निश। बहरहाल रिवायत में आता है कि ये इस आयत की तफसीर में जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन जब महशर का मैदान बर्पा होगा, अब तमाम लोगों से हिसाब किताब लिया जाएगा। इससे पहले कि लोगों का हिसाब किताब हो, तमाम जानवरों और मखलूक को जमा किया जाएगा, इंसानों और जिन्नों को छोड़कर। ठीक है, इंसान तो जिन मुकल्लफ, इनसे बहरहाल बाज बुरस होगी,
लेकिन जो बाकी मखलूक हैं जिनमें चरिंद परिंद या चारवाई सबको जमा किया जाएगा और एक एक का हिसाब और बदला चुका दिया जाएगा। हत्ता की रिवायत में आता है अगर किसी सींग वाले जानवर ने बेसींग जानवर को सींग मारी होगी तो कयामत के दिन इस जानवर को सींग अता की जाएगी उस जैसी ही, और वो उसको मारेगा, इनसे हिसाब क्या कैसे बराबर। बहरहाल इसके बाद अल्लाह तबारक व तआला इनका हिसाब किताब खत्म करने के बाद, इनको बदला लेने के बाद अल्लाह तबारक व तआला हुक्म करेगा कि मिट्टी हो जाओ, और ये तमाम चीजें मिट्टी हो जाएंगी। ये सारी चीज क्या कैसे, क्योंकि अब इनका कोई मकसद ही नहीं है, क्योंकि इनसे तो हिसाब किताब लेना ही नहीं है। अब तो सिर्फ किन से हिसाब किताब लेना है, जिन और इन्स, ये जिन तो इन्स तुम नहीं होता। तो इस वक्त जब काफिर ये देखेंगे कि ये चौपाई ये बाकी मखलूक ये मिट्टी हो रहे हैं, तो अपनी कोताहियों को देखकर, अपने गुनाहों पर नजर करके और अल्लाह की पकड़ को मद्देनजर रखते हुए वो उस वक्त ये तमन्ना करेंगे काश हम भी इन चौपाइयों की तरह आज क्या हो जाते, मिट्टी ही हो जाते, हम भी धसाए जाते इनकी तरह। तो इसी की तरफ इस आयत में इशारा है, यौमइज़िन यवद्दुल्लज़ीना कफरू, ये वो दिन है जिस दिन काफिर लोग व असव रसूल, और वो लोग जो रसूल का इनकार करते हैं वो ये तमन्ना करेंगे और आरज़ू करेंगे, लौ तुसव्वा बिहिमुल अर्ज़, कि काश हम आज इन चौपाइयों की तरह मिट्टी ही हो जाते, हमें भी जमीन में दसा दिया जाता, हमारा मामला ही खत्म किया जाता ताकि हमसे हिसाब किताब न लिया जाता। बहरहाल रवायत में आमद ये हदीस मैंने आपको पहले भी सुनाई है, जब जहन्नमियों को जहन्नम में ले जाया जाएगा तो वह हसरत करेंगे, वो वहां पर दुआएं मांगेंगे अल्लाह से कि या लैतनी मित्तु, कि या अल्लाह हमें तो अब मौत ही दीजिए। मगर अल्लाह तबारक व तआला वहां उनसे कहेगा कि आप पर अब मौत भी वाक़ा नहीं होगी, क्योंकि मौत को भी मौत आ चुकी होगी। अल्लाह ताला फरमान वला यक्तुमून अल्लाह हदीसा, और ये वो दिन है जिस दिन ये किसी बात को छुपा नहीं सकेंगे। ये सो दो यम दोन कहीं कथ या कहीं पन राज हेन खुदायस ब्रोह कहीं खटित थयित कह, बल्कि कुरान कहता है अल यौम नख्तिमु अला अफवाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। ये वो दिन होगा अल यौम नख्तिमु अला अफवाहिहिम, इस दिन इनके मुंह पर मोहर कर दी जाएगी, यानी ये मुंह से कोई बात नहीं कह सकेंगे। अल यौम नख्तिमु अला अफवाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम, इनके हाथ बोल उठेंगे। यमन अथन ये गोयाई दिन, जिस तरह ये अल्लाह की कुदरत है, जिस तरह जबान को गोयाई आता है इसी तरह हाथ को भी गोयाई दी जाए, और ये अथ कर कथ तम सातन, और ये कहेगा कि या अल्लाह कौन कौन से गुनाह और कौन कौन से काम मैंने इन हाथों से किए हैं। इसके ये पैर जो है ये गवाही देंगे कि बारिला खुदा बुकत को चीज वोतमुत गुनाह करने, तो ये भी बातें करेंगे, ये भी ये गवाही देंगे। व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून, जो कुछ इन्होंने किया होगा। बल्कि सूरह नूरस में आमद वहां पर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है कि इस दिन इनकी ये जिल्द जो है, ये जन यहूदी जिल्द जिस्मुक, ये भी बातें करेगी। ये क्या करे, ये दी उमर खिलाफ गवाही। और कुरान कहता है कि ये काफिर इस अपने जिस्म के आज़ा से कहेगा लिमा शहीद तुम, आप अपने ही खिलाफ क्यों गवाही देते हो, ताकि पन्ने पानस खिलाफ गवाही दिवन। बहरहाल वो कहेंगे अंतकल्लाह, हमें बात करने की आज हुक्म और बात करने की सलाहियत किसने दी है, अल्लाह ने दी है, इसलिए हम अल्लाह के हुक्म से बोलते हैं। वो बहरहाल इससे पता चलता है कि ये वो दिन होगा कि चाहे लाख ये कोशिश करेंगे अपने गुनाहों को छुपाने की, मगर ये अपने गुनाह वहां छुपा नहीं सकते हैं। तो यही बात यहां पर कही जाती है वला यक्तुमून अल्लाह हदीसा, ये किसी बात को भी उस दिन छुपा नहीं सकते। यानी आज हम देखते हैं दुनिया में जब कहीं गवाही देनी होती है या यमसातन कांच आसन कोर्टस में, वहां वो गवाही छुपाता भी है, वहां वो झूठ बोलकर सच पर पर्दा भी डालता है, मगर अल्लाह ताला फरमाता है ये वो दिन होगा जिस दिन ये कोई भी बात छुपा नहीं सकेंगे। बहरहाल ये चीज़ आयात आज के दर्शन पर अलबत्ता एक और मसला इन आयात से अहम निकलता है, उसकी भी मैं निशानदेही कर दूं। वो ये है कि गोडीच आयत पढ़े फकाइफा इज़ा जीना मिन कुल्ली उम्मत, उस दिन क्या हाल होगा लोगों का जब हम हर उम्मत में से एक गवाह खड़ा करेंगे। वह जीना बिका हाउलाई शहीद, और ए या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम आपको भी गवाह बनाकर क्या करेंगे, खड़ा करेंगे। बहरहाल आम हमारे बरेलवी हजरत इस आयत से ये इस्तेदलाल करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक हाजिर व नाजिर हैं, यानी तुम्हारा सच हाजिर और नाजिर, क्योंकि गवाही कौन देता है, जो मौके वारदात पर आसे मौजूद वही तो गवाही दे सकता है। उनका ये इस्तिदलाल है क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साबिका उम्मतों की गवाही देंगे, इसलिए वो मौजूद थे अज़ल से ही,
नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक जिस तरह अल्लाह मौजूद है, मगर ये उनका इस्तेदलाल सही नहीं है। क्यों? क्योंकि शहीदा ये तो हमारी उम्मत के लिए भी कहा जा गया है, वकज़ालिक जअलनाकुम उम्मतन वसतन लितकूनु शुहदाअ अलन नास व यकून रसूल अलैकुम शहीदा। ये तो हमारे लिए भी कहा गया है कि आप भी लोगों पर क्या हो जाओगे, गवाह। क्या इसका मतलब है कि उम्मत का हर शख्स फिर हाजिर और नाजिर है? नहीं, बल्कि ये शहीद का मतलब जो है ये असल में शहादत इल्म की बुनियाद पर होगी, ये शहादत कुरान की रोशनी में शहादत होगी। इसलिए इससे इस बात का इस्तेदलाल करना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर जगह हाजिर और नाजिर है और अज़ल से मौजूद हैं, ये सही बात नहीं है, बल्कि ये इल्म की बुनियाद पर और कुरान की रोशनी में अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से वो ये गवाही देंगे। दयम का मजीद इंपॉर्टेंट का यहाँ कहा गया कि उस वक्त क्या हाल होगा जब हम हर उम्मत से एक नबी खड़ा करेंगे शहीद, और या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको भी गवाह खड़ा करेंगे। ये नहीं कहा गया कि आपके बाद जो नबी आएंगे उनको भी खड़ा करेंगे। तो इस आयत से पता चलता है कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये आखिरी रसूल और आखिरी नबी हैं। खत्म नबूवत पर भी ये आयत दलील देती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी आने वाला, तो इन कादियानियों का मलऊन वो जो गुलाम अहमद कादियानी को कहते हैं कि यह आखिरी नबी है, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, तो बहरहाल उनकी भी इसमें उनका भी रद्द हो रहा है इस आयत में, क्योंकि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी नबी का इस आयत में जिक्र, तो ये आयत ये मजबूत दलील कमिच खत्म नबूवत दलील थे, क्योंकि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही तमाम नबियों के बदले भी फिर गवाही वहां पर देंगे। बहरहाल जहां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकाम को इस आयत ने जाहिर किया, वहां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत पर भी ये बहुत बड़ी दलील है। अल्लाह तबारक व तआला से मंगो दुआ कि रब्बुल आलमीन दिन ऐसे जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मकाम प्रेजनान तौफीक और तिहिंदन सन्नतन पर दिन अमल करने तौफीक। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।